Sir, I do not have any problem to shifting abroad country, but I will not change my religion. Otherwise, I am very open-minded and I am always happy, even when I am sad. एक सेकंड ये कैसे होता है भाई? And I am always happy, even when I am sad. तुमसे ना हो पाएगा। वाह वाह, तालियां भाई, तालियां। I'm gonna address something that I've heard so many times over the emails, comments. People tell me that, ma'am, we really want to learn English and we really want to be fluent in English, but the problem is that we don't know how to start thinking in English. Hi, so tell me about yourself. Sir, I am sitting in front of yourself, myself Rakesh Mohanty, and I am technology mad. But if you will ask me what is my passion, I will say hardware. एक सेकंड, what is your what? What is my passion? Passion. अच्छा पैसोन, ओ समझा। वाह वाह, तालियां भाई, तालियां। Sir, I do not have any problem to shifting abroad country, but I will not change my religion. Otherwise, I am very open-minded and I am always happy, even when I am sad. एक सेकंड ये कैसे होता है भाई? And I am always happy, even when I am sad. Now that is some real talent. ये कोई असली talent है भाई. Even when I am sad, I am happy. I am always happy because I am never sad. I am happy when I am sad. What is this, man? English is a very funny language. अबे मजाक थोड़ी ना इंग्लिश यार. तुम्हें क्या लगता है इंग्लिश बोलना आसान है? English speaking like a rice plate eating. अरे यार आसान थोड़ी ना इंग्लिश बोलना है. ऐसे जॉब इंटरव्यू के लिए लोग इंग्लिश सीखने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं और फिर वहां पर कुछ ऐसा सिखाया जाता है. You don't write a letter. You don't write a letter. They don't write a letter. They don't write a letter. He does not write a letter. He does not write a letter. She does not write a letter. She does not write a letter. राइट ओ ऐसे सीखते हैं इंग्लिश. तुम्हें क्या लगता है इंग्लिश स्पीकिंग राइस प्लेट ईटिंग? No, never, not. तुमसे ना हो पाएगा। पर गलती इस भोले से बच्चे की नहीं है यार. गलती इसकी स्कूल टीचर की है जिसने इसको ऐसी इंग्लिश सिखाई. NATURE नटूरे FUTURE फुटूरे नटूरे फुटूरे. And no matter what language you speak, I'm just talking in general because my channel is mostly watched by Indians. So that is why I'm saying that this translation from whatever language you otherwise speak to English will stop if you start thinking in English. And it is something that is so commonly said that you need to start thinking in English if you want to be fluent in English. But I know it is easier said than done. So when it comes to your accent, let's focus on clear communication. Not the perfect English accent, but clear communication that makes it easy to understand you, to help you feel more confident when you're speaking to others, and to fit in. So if reducing your accent and speaking clearly is something that you're interested in doing, then stick around. हेलो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं उसमें हम मेनली बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश. इस वीडियो में हमने अपना जो डिवाइड किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग्स, कि स्पेलिंग्स के बेसिस पे किस तरह से ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन इंग्लिश डिफर करती है. पहले हम स्पेलिंग्स के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट ग्रामर, कि ग्रामेटिकली कैसे तीनों इंग्लिश में डिफरेंस आता है. फिर वोकैबुलरी की बात करेंगे कि वोकैबुलरी डिफरेंस कैसे आता है, और लास्ट में हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन के बारे में. क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक कुछ वर्ड्स सारे वर्ड्स ब्रिटिश और अमेरिकन एक ही तरह से बोलते हैं. कुछ वर्ड्स को बोलने में डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश.
एंड ऑफ कोर्स हम अपनी भी बात करेंगे कि हम उसे किस तरह से बोलते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द डिविजन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग्स. सबसे पहले डिफरेंस हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग्स. देखिए, जब हम बात करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज RE एंड ER. अब देखिए, यहां पर मैंने वर्ड से पहले एक लाइन डाली है, यानी कि ये जो ER है या आपका RE है, यानी कि वो किसी वर्ड के एंड में आ रहे हैं, इसलिए यहां पहले लाइन डाली गई है, यानी कि इससे पहले जो भी वर्ड स्पेलिंग्स हो सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ ER एंड RE, द वर्ड दैट एंड्स इन RE is in British, right? जो वर्ड्स ब्रिटिश में RE में एंड होते हैं, यूजुअली अमेरिका में वो अदर वे राउंड होते हैं. अदर वे राउंड मतलब वो E पहले पढ़ते हैं और R बाद में पढ़ते हैं, राइट? सो ब्रिटिश में जो RE वाले वर्ड्स होते हैं, अमेरिकन उनको अदर वे राउंड मतलब RE की जगह E एंड R अदर वे राउंड पढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स जैसा अभी हमने देखा था, जो आपका नोआ वेबस्टर के एग्जाम्पल में देखा था, सेंटर हम ब्रिटिश में बोलते हैं CENTRE, सेंटर. दिस इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट? अमेरिकंस दे कॉल इट एज CENTER, सेंटर. इंडिया में ऑफ कोर्स मैंने ऐसे आपसे कहा कि कुछ चीजों में हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, कुछ चीजों में हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ द स्पेलिंग्स मेनली हम ब्रिटिश स्पेलिंग्स को फॉलो करते आए हैं अभी तक. यस, अब कई लोग ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, कई लोग उसे अमेरिकन इंग्लिश की तरह यूज करते हैं, बट इंडिया में दोनों को में से आप जो भी यूज करेंगे 90% इट्स नॉट रॉन्ग. बट अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, देन यू शुड यूज ब्रिटिश इंग्लिश, नॉट अमेरिकन इंग्लिश, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर आफ्टर सेंटर जो आप देख रहे हैं वो है हमारा थिएटर, राइट? थिएटर, THEATRE, again ending in RE, theater. The same word is spoken in American English like theater, THEATER. जैसा हमने देखा other way round. But in India, again, as I said, just like the British English. अगला है वो वर्ड्स जो NCE या NSE. सी यहां पर डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ C and S. जैसे यहां तो बिल्कुल ही आगे पीछे हो गए, बट यहां पे सिर्फ CE और SE का डिफरेंस है. यूजुअली ब्रिटिश जो है वो यूज करते हैं विद NCE एंडिंग, बट अमेरिकन दे प्रेफर टू यूज NSE, राइट? एग्जाम्पल, डिफेंस, DEFENCE. आपने देखा होगा डिफेंस मिनिस्टर, तो आपने स्पेलिंग ये देखी होगी इंडिया में. जैसा मैंने कहा कि हम इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं और फॉलो करते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश इज DEFENSE. अगर बाय चांस अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं बाय सम अमेरिकन ऑथर, तो वहां पर आपको स्पेलिंग SE दिखेगा. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज द सेम. डिफेंस किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, डिफेंस करना. लाइसेंस, आप ड्राइविंग लाइसेंस, आई जस्ट गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस, राइट? सो इट्स LICENCE. In India, again, just the same license, driving license or any kind of license you get. Some people, they get a gun license, you know. So, license है, जो भी आपको मिलता है. और in case of America, it is LICENSE. जैसा हमने देखा, the difference comes with CE and SE. Then we have is ISE and IZE. यहाँ पर spelling difference है with S and Z, right? SE is used by British and Z is used by Americans. So Americans use IZE
ending, whereas British take it as a wrong spelling. अगर आप किसी अमेरिकन मतलब अगर आप किसी ब्रिटिश के सामने IZE लिखेंगे तो कहेगा अरे ये तो गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक. बट उनके लिए वो सही है, अमेरिकन के लिए, बट फॉर ब्रिटिश इट्स रॉन्ग. सो इट्स both ways. Example is organize, ORGANISE, British English, organize. And in India, again, we also use SE, that's organize. But Americans, they are using it Z, I mean organize, ORGANIZE, organize. Apologize, maafi mangna, right? Apologize, APOLOGISE, apologize. I apologize for being late. I apologize for not doing my work. In India also we use the same spelling, ISE, ending. But American, you see the difference. It's APOLOGIZE, apologize. Then comes the difference in OUR and OR. Actually जो ब्रिटिश हैं वो एंडिंग में OUR लगाते हैं, बट अमेरिकन्स U को हटा देते हैं और सिर्फ OR रखते हैं. So as I said, in the British English, ending is in OUR, but in America, they dropped U. Like color, जो हमने spelling देखा था, COLOUR, ये British English है. और इंडिया में भी हम जब स्कूल्स में सीखते हैं कलर की स्पेलिंग, वी ऑलवेज लर्न COLOUR. बट अमेरिकन्स, लाइक Noah Webster said, it's shorten the words. जैसे बोलते हैं वैसे लिखो. यू का आवाज नहीं आ रहा तो लिखने की जरूरत नहीं है. सो फॉर देम द स्पेलिंग इज COLOR. Labor, LABOUR, like we have labor ministry and child labor and all that. So that labor. Same in India is like same labor, and here it is labor, LABOR. They have shortened the spelling. They have dropped U from this. Then we have is, in the end we have is single L and we have is double L. British जो है वो single L use करते हैं, but Americans जो हैं usually वो double L use करते हैं, right? Like example, enrollment, like जब आप enroll करते हैं किसी course के लिए, right? So you get an enrollment form, right? So it's that enrollment I'm talking about. ENROLMENT, यहाँ पे देखिए सिंगल L है, right? अब यहाँ पर ये बीच में आ रहा है, वो एंड में भी आ सकता है. So it's not only in the end, but it can be in the middle also. But British prefer to use single L rather than Americans prefer to use double L. Like enrollment, we also use the same enrollment, ENROLMENT. Whereas Americans, they use double L. जैसा आपको मैंने बताया, ENROLLMENT, enrollment. Skillful, SKILFUL, skillful. Same we also use. In case of American English, it's SKILL, skillful. Then if we talk about again somewhat ending, अगर किसी ending की बात करते हैं, OGUE, OG, अगर हम end में यूज कर रहे हैं, usually it is in British English, but in American English उन्होंने आपका ये end का UE जो है end का, उसको drop कर दिया है. So this is by American English. सिर्फ OG पे ही वो stop हो रहे हैं. In British the word use, the words they use OGUE, but in Americans they only use OG. Example, dialogue. India is having a dialogue with Pakistan. They want to have some dialogue with Pakistan,
and so dialogue. Same we also say, but in America it is dialogue, dialog. देखिए यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पे हमारा था ue उसको इन्होंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है. कैटलॉग राइट. आपने कोई कुछ खरीदना है या जैसे मान लीजिए अपने घर को पेंट कराना है तो आप एक कैटलॉग देखते हैं which has got huge selection of the things. So that is your catalog. CATALOGUE. Same we use CATALOGUE. But in Americans, again they dropped UE from the end. So it's CATALOG, catalog. So अब हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने जो बात किया वो हमने स्पेलिंग्स के बारे में किया कि स्पेलिंग्स में किस तरह से डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश एंड इंडियन इंग्लिश. अब मेनली हम बात करने वाले हैं ग्रामर की. और इसको आगे जाने से पहले एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ ग्रामर हम लोग मेनली ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं. हम लोग मीन्स इंडियंस. तो इंडियन इंग्लिश जो है वो कंप्लीटली ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करती है इन टर्म्स ऑफ ग्रामर. Then we have a difference in conjugation. Conjugation होता है verbs. Basically, conjugation is the usage of the verbs, जिसे हम verbs की forms बोलते हैं V1, V2 and V3. उसे हम conjugations बोलते हैं. So that means this is all your verbs first form, second form of the verb and of course the third form of the verb. So this is your conjugation. इसमें भी difference होता है. Like in some words, so we'll look into the examples, like burn. The first form is burn. The second form, Americans burned बोलते हैं. They don't, हम लोग बोलते हैं burnt. My hand got burnt, right? British, because we follow the British. So it's BURNT. And the third form is also burnt, BURNT. यहाँ पर भी है BURNT. But in case of American English, they say burned, you know, I burned my hand. And even in the third form, it is ED. Second example is dream, यानी कि सपना, right? Dream, I saw a dream, right? He dreamt about a car accident, right? उसने एक सपना देखा कि इस चीज का कि एक एक्सीडेंट हो गया है. So it's dreamt. हम लोग dreamt बोलते हैं, just like British people we say dreamt. And the third form is also dreamt. But Americans, they say dreamed. I dreamed about so and so person. I dreamed about Tom Cruise. I dreamed about someone. Learn, याद करना. It is learned in case of American, it's ED. But in case of British, it is T. Learned. Pause करो. Tenses. So tenses, in case of tenses, the speakers of British English use present perfect tense more than the American speakers. American speakers जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इतना यूज नहीं करते जितना ब्रिटिश करते हैं, बल्कि वो जो हैं वो उस केस में प्रेफर करते हैं टू यूज अ सिंपल पास्ट टेंस सेम सिचुएशंस के पर. और हम लोग, जैसा हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि हम इंडियंस जो हैं वो फॉलो करते हैं ब्रिटिश को इन दिस ग्रामर केस. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख के समझने की कोशिश करते हैं. जैसा
चलिए अब एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं। जैसा हमने अभी बात किया था कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो स्पीकर्स हैं वो ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, लेकिन वहीं पर जो अमेरिकन्स हैं सेम सिचुएशंस में सिंपल पास्ट टेंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और हम मींस इंडियंस जो हैं हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? क्या तुम अपना होमवर्क खत्म कर चुके हो? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? इंडियन इंग्लिश, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? बट सेम सिचुएशन में अगर एक अमेरिकन नेटिव बोल रहा है तो वो बोलेगा डिड यू फिनिश योर होमवर्क? देखिए डिफरेंस, जैसे कहा था दे प्रेफर टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड दे प्रेफर टू यूज सिंपल पास्ट टेंस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म। मान लीजिए मेरा फ्रेंड जो है, मेरी फ्रेंड, वो मुझे कह रही है कि चल यार ये फिल्म देखने चलते। अरे वो फिल्म मैं पहले ही देख चुकी हूं, राइट? सो इट इज आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म और मूवी, जबकि एक ब्रिटिश बोलेगा आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म। वहीं पे यहां पे देखिए आई हैव ऑलरेडी सीन, राइट? वहीं पे सेम सिचुएशन में एक अमेरिकन बोलेगा आई ऑलरेडी सॉ दैट मूवी। अब यहां पर आप देखेंगे एक फिल्म और एक मूवी है और यहां पर हमने दोनों लिखे हैं। ये डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी जो हम ग्रामर के बाद डिस्कस करेंगे। ये वोकैबुलरी डिफरेंस है। बट टेंसेस की बात करें तो यहां पे यूज हो रहा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और यहां यूज हो रहा है हमारा सिंपल पास्ट। एक और एग्जाम्पल देते हैं। I can't find my keys. Have you seen them anywhere? मुझे चाबियां नहीं मिल रही हैं। Have you seen them anywhere? क्या तुमने उनको कहीं देखा है? सेम अगर मैं बोलूंगी being an Indian, I'll say I cannot find my keys. Have you seen them anywhere? मुझे कीज नहीं मिल रही हैं, तुमने कहीं पे देखी हैं? वहीं पे एक अमेरिकन बोलेगा I can't find my keys. Did you see them anywhere? Did you see? See. Have you seen? And here it is, did you see? See here. This is a basic difference in case of British and American and of course Indian English, क्योंकि हम तो British को follow कर रहे हैं in terms of grammar. अब difference आता है in case of modals. मोडाल्स कई लोग इसे मॉडल्स भी बोलते हैं, बट इट्स मोडाल्स और मॉडल्स द सेम थिंग। मेन डिफरेंस कम्स इन द यूजेज ऑफ विल एंड शैल। British often use will and shall in the statements referring to future with I and we। जो ब्रिटिश हैं वो ज्यादातर विल और शैल को यूज करते हैं आई और वी के साथ फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, whereas Americans use will to show the future। और आजकल currently we Indians are also using will to show future। आजकल पिछले शायद कुछ 5-6 सालों में थोड़ा सा चेंज आया है। हाँ, अगर हम अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक्स देखते हैं, इवन आज भी स्कूल में बच्चे सीखते हैं, वो विल और शैल दोनों सीखते हैं, क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो नॉर्मली रिवाइव नहीं होती हैं, और क्योंकि इंडिया में जितनी टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं हमारी यूजुअली दे आर बाय कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की होती हैं एंड दे आर ऑल ब्रिटिश पब्लिकेशंस। But in terms of actual usage in case of speaking and writing, आजकल हम इंडियंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ विल को यूज कर रहे हैं फ्यूचर दिखाने के लिए। एग्जाम्पल्स आर वी शैल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल टुमारो। हम कल इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वी शैल बी, वी विल बी नहीं बल्कि वी शैल बी हमने यूज किया, क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पर शैल को यूज करते हैं विद आई एंड वी। दैट्स द फर्स्ट पर्सन। और के साथ नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ आई और वी के साथ बात कर रहे हैं। बट इन अमेरिकन दे विल से वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। यहां पर उन्होंने शैल की जगह विल को यूज किया है।
सेम हियर इन केस ऑफ इंडियन इंग्लिश, हम यहाँ पर विल को प्रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ शैल. Now, the difference comes also on the basis of prepositions. Like at the weekend and on the weekend, right? Now, British जो हैं वो अक्सर यूज करते हैं at the weekend, right? I am planning to go to Switzerland at the weekend. वीकेंड, जब प्लीज ध्यान रखिएगा यहां हम बात सिर्फ वीकेंड यूज करने की कर रहे हैं. जब भी हम वीकेंड वर्ड यूज करते हैं तो हम यहां पर बात कर रहे हैं. तो ब्रिटिश दे प्रेफर टू यूज एट विद इट, वेयर एज अमेरिकन्स यूज ऑन विद इट, राइट? और हम इंडियंस जो हैं हम दोनों यूज करते हैं आजकल. So British English, what are you doing at the weekend? तुम weekend पर क्या कर रहे हो? American will say let's have a barbecue on the weekend. चलिए barbecue करते हैं weekend पे. Let's have a barbecue on the weekend. Sorry, I am busy at the weekend or on the weekend. मैं weekend पर या weekend में busy हूँ. अब अगर मैं इसे other way round कर दूं, मान लीजिए एक American ये statement बोलता है, एक अमेरिकन जो है वो ये बोल रहा है, तो बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग ऑन द वीकेंड, राइट? और मान लीजिए इंडियन है वो ये बोलेगा लेट्स हैव अ बारबेक्यू एट द वीकेंड या ऑन द वीकेंड. तो ब्रिटिश यहां पे क्या बोलेगा? सॉरी, आई एम बिजी एट द वीकेंड, राइट? एट द वीकेंड. अब हम बात करते हैं अगेन फॉर preposition which is in and on with the street names. जब भी हम किसी street names की बात करते हैं तो उसके साथ preposition difference आता है writing of in में या on के अंदर. British often use in with the street names. जब भी एक street names की बात करते हैं British जो है वो ज्यादातर in यूज करते हैं, बल्कि अमेरिकन जो है वो ऑन यूज करते हैं, और हम इंडियंस वी यूज इन विद इट. लाइक देयर वर अ लवली फैमिली, दे लिव्ड इन वॉल्टन स्ट्रीट. वो एक बहुत लवली फैमिली थी, वो वॉल्टन स्ट्रीट में रहती थी. दे लिव्ड इन वॉल्टन स्ट्रीट. वेयर एज हम भी इन ही यूज करते हैं, बल्कि अमेरिकन जो हैं दे विल से they were a lovely family, they lived on Walton Street, right? Earlier I used to live in Parrot Street. मैं बोलूंगी earlier I used to live in Parrot Street. जैसे हमारे इंडिया में मोहल्लों के नाम होते हैं, अमेरिका में स्ट्रीट्स के नाम होते हैं, राइट? यू लिव ऑन द स्ट्रीट्स. इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर रह रहे हैं, बट इसका मतलब ये है कि आप उस जगह, उस स्ट्रीट पर आपका घर है. सो अमेरिकन विल से आई यूज्ड टू लिव ऑन पैरट स्ट्रीट. नाउ द डिफरेंस कम्स विद द preposition at and in with the names of the universities or some other institutions. Usually जो ब्रिटिश होते हैं वो at use करते हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटीज या किसी भी इंस्टीट्यूशंस के नाम के साथ, और वहीं पर जो अमेरिकन्स हैं वो इनको यूज करते हैं उनके साथ, और हम इंडियंस यहाँ पर at को यूज करते हैं फॉर द सेम. एग्जाम्पल इज शी स्टडीड फ्रेंच एट हाई स्कूल. उसने हाई स्कूल में फ्रेंच पढ़ा, सो इट्स एट. और हम लोग भी यही बोलते हैं, शी स्टडीड फ्रेंच एट हाई स्कूल एट. इसके अलावा अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर आप यहाँ अमेरिकन के लिए देखें, सो शी स्टडीड फ्रेंच इन हाई स्कूल. Contrary to the British and Indian English, they use in.
I studied humanities at universities. मैंने यूनिवर्सिटी में humanities पढ़ा है at the university. Same as I studied humanities at the universities. वहीं पर an American will say I studied humanities in the university. In British English, to is always used after the verb write, right? जब भी हम write verb को यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में हमेशा उसके बाद हम to को यूज करते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में this to can be omitted. Omitted मतलब उसे छोड़ा भी जा सकता है write के बाद. और here in India we use or we follow the British English. I promised to write to her every day. मैंने उसे promise किया कि मैं उसे रोज चिट्ठी लिखूंगी. I promised to write to her every day. Same here, I promised to write to her every day. But American वो नहीं, यहाँ पर to हटा देंगे. I promised to write her every day. तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस जो हमने देखे इन टर्म्स ऑफ आवर ग्रामर. पहले हमने बात किया स्पेलिंग्स का और उसके बाद हमने बात किया हमारा ग्रामर का कि किस तरह से ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश ग्रामेटिकली डिफरेंट होती है. अब हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी की. सो अब हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी की कि किस तरह से हम इनमें डिफरेंस देखते हैं तीनों में इन केस ऑफ वोकैबुलरी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वोकैबुलरी सेक्शन नाउ. यहां पर देखिए, आप देखेंगे कि कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यूजुअली हम लोग यहाँ पर इसे लिफ्ट बोलते हैं. ब्रिटिश जो होते हैं वो इसे लिफ्ट बोलते हैं और वहीं पर जो हमारे अमेरिकन होते हैं दे कॉल इट एज एलिवेटर्स. वो इसको एलिवेटर्स बोलते हैं. यूजुअली इंडिया में हम एलिवेटर्स इस तरह से जो आप लोगों ने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे होते हैं, हम उनको, या आप लोगों ने मॉल्स में देखा होगा, हम इन्हें एलिवेटर्स यूजुअली बोलते हैं. बट इन अमेरिका उनके लिए ये जो लिफ्ट है हमारी, जिसे हम लिफ्ट बोलते हैं, उन्हें ही वो एलिवेटर्स बोलते हैं. सो ब्रिटिश दे से लिफ्ट्स, अमेरिकन्स दे से एलिवेटर्स और इंडिया में हम उसे लिफ्ट बोलते हैं. द नेक्स्ट वी हैव इज, जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, ब्रिटिश इसको बिस्किट्स बोलते हैं और अमेरिकन इनको कुकीज बोलते हैं. कुकीज. सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में हम इन्हें यूजुअली बिस्किट्स कहते हैं. देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई इसे कुकीज नहीं कहता. कुछ लोग हैं जो इसे कुकीज भी कहते हैं, बट वो नंबर रिलेटिवली बहुत कम है. अब ऐसा आप इसमें वोकैबुलरी सेक्शन में देखेंगे, बहुत सारी जगह पर हम कई बार ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं, कई बार हम अमेरिकन इंग्लिश की वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज करते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो आपको इन दोनों से अलग भी दिखाई देंगे. उसका रीजन ये है कि यस, वी हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश इंग्लिश बिकॉज वी हैव बीन रूल्ड बाय ब्रिटिश पीपल. लेकिन जैसा हमने देखा था कि केबल कल्चर और टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत अकम्पनीड हो गए हैं अमेरिकन वर्ड्स के भी, तो हमें उनके बारे में भी पता है, इसलिए हम दोनों को यूज करते हैं. और इंडिया में रहकर अगर आप दोनों में से कोई भी यूज करते हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो. लेकिन अगर मैं एक ट्रू ब्रिटिश की बात करूंगी तो एक ट्रू ब्रिटिश कभी भी कुकीज नहीं बोलेगा, और दूसरी तरफ एक अमेरिकन जो है वो कभी भी बिस्किट्स नहीं बोलेगा. वो अपने वर्ड्स ही बोलेंगे. लेकिन यूजुअली इंडिया में हम दोनों यूज करते हैं और उन्हें गलत नहीं मानते हैं. सो ब्रिटिश कॉल दिस एज बिस्किट्स एंड अमेरिकन्स कॉल देम एज कुकीज एंड वी कॉल देम एज biscuits.
देन हेयर आप यहाँ देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कुछ पतझड़ जैसा है, पेड़ पीले पीले हो रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं. अमेरिकन्स इसे बोलते हैं ऑटम, राइट? लाइक वी हैव अ सीजन, ऑटम सीजन होता है हमारा. सो ब्रिटिश इसे ऑटम बोलते हैं और अमेरिकन्स इसको फॉल बोलते हैं. ओह, यू नो, दीज डेज वी हैव फॉल्स. तो यहाँ पे फॉल्स का मतलब गिरना नहीं, या हम लोग फॉल्स झरनों को बोलते हैं. सो here we are talking about the autumn season. fall इसलिए बोलते हैं वो क्योंकि इस सीजन में पत्ते गिरते हैं. and in India we use autumn. हम autumn बोलते. in case here if you see हम इंडिया में इसे ट्रक बोलते हैं. ब्रिटिश जो है वो इसे लॉरी बोलते हैं, लॉरी, राइट? ही इज ए लॉरी ड्राइवर. अमेरिकन्स उसे ट्रक बोलते हैं. और देखिए यहाँ पर हम इंडियंस जो हैं वो लॉरी ना यूज करके बल्कि ट्रक यूज कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स, राइट? सो ट्रक, ही ड्राइव्स अ ट्रक. तो यहाँ पर हम ट्रक यूज कर रहे हैं. द नेक्स्ट स्लाइड्स आप देखेंगे, यहाँ पर गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हैं. अमेरिकन, ब्रिटिश जो है वो उसे पेट्रोल बोलते हैं. Americans call them as gas. And हम लोग गैस नहीं बोलते, हमारे लिए गैस का मतलब LPG होता है, हम लोग उसे पेट्रोल बोलते हैं. नेक्स्ट इज फिल्म. जो ब्रिटिश होते हैं वो यूजुअली फिल्म बोलते हैं और जो अमेरिकन्स हैं वो उसे मूवी बोलते हैं. लेकिन बीइंग इन इंडिया हम दोनों बोलते हैं. हम फिल्म भी बोलते हैं और मूवी भी बोलते हैं. हाँ, डिड यू सी दैट फिल्म? This movie is releasing. I'm going to watch a movie with my friends. The movie was very nice or the film was very nice. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं, British they call it as film, Americans they call it as movie, but we call them as film or movie. ये देखिए, अब आप इस पिक्चर में देखिए क्या लगा है. ये बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंक्स के बाहर ऐसी लंबी लंबी लाइंस लगी थी. दिस ब्रिटिश दे कॉल दिस एज क्यू. प्लीज स्टैंड इन द क्यू. अमेरिकन्स कॉल दिस एज लाइन. और यूजुअली हम इंडिया में लाइन ज्यादा यूज करते हैं. हम ये नहीं कह रही मैं कि क्यू नहीं बोलते. मेनी पीपल से यहाँ पर मैंने वो दिए हैं जो ज्यादातर लोग बोलते हैं. ज्यादातर लोग उसे लाइन बोलते हैं. अरे भाई लाइन में लग जाओ, लाइन मत तोड़ो. दे डोंट से क्यू में लग जाओ. सो समटाइम्स अगर आप क्यू बोलते हैं तो हो सकता है कि किसी को क्यू क्या है ये समझ ना आए. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ लिस्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट वर्ड इज हैंड बैग. आप जानते हैं लेडीज जो बैग लेते हैं, जिसे ब्रिटिश उसे हैंड बैग्स बोलते हैं एंड अमेरिकन्स कॉल इट एज पर्स. पर्स, अब तो आप समझ गए होंगे. इंडिया में ज्यादातर हम पर्स यूज करते हैं. मुझे पर्स लेना है, मेरा पर्स घर पे है क्या, एंड ऑल दैट. और पर्स के अंदर अगर आप बात करते हैं तो पर्स के अंदर एक छोटा हैंड क्लचर पर्स भी आता है और जो हैंगिंग वाला होता है वो भी आता है. तो पर्स में हम दोनों इंक्लूड करते हैं इंडिया में. बट यूजुअली आप फॉरेन में जाएंगे तो आप पर्स के लिए वो लंबा वाला पर्स जो लेडीज लेती हैं गोइंग फॉर वर्क, तो और आजकल कुछ लोग हैंड बैग्स भी बोलते हैं. बट ज्यादातर इंडिया में हम पर्स यूज करते हैं. Next is British use the word taxi. I need to hire a taxi. और वहीं पर Americans जो हैं वो यूज करते हैं cab. और आपने देखा होगा कि पहले जब ये आपकी ओला एंड उबर नहीं आई थी, उससे पहले हम टैक्सी बोलते थे इंडिया में. सो हम टैक्सी भी बोलते थे और अभी कई लोग बोलते हैं टैक्सी बुला लो, टैक्सी कर लो. बट अब क्योंकि जब से आपका ये ओला एंड उबर्स आए हैं, लोग कहते हैं कैब. ओला, आई हैव टू बुक अ कैब, लेट्स बुक अ कैब. सो हम आजकल दोनों यूज करते हैं. वी यूज टैक्सी ऑल्सो एंड वी यूज कैब. अगला है
कैश पॉइंट, देखिए कभी आपने सुना है नहीं, लेकिन एटीएम बोलूंगी तो आपको एकदम अरे एटीएम, ओ या आई नो तो आपने यूज किया है। ऑलमोस्ट आजकल हर कोई एटीएम्स यूज करता है, बट एक्चुअली जो ब्रिटिश हैं वो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है कैश पॉइंट। हो सकता है आपने कभी किसी एटीएम के बाहर क्लास पे या कहीं देखा भी हो, बट आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि कैश पॉइंट आखिर होता क्या है। सो कैश पॉइंट मीन्स एटीएम, और इंडिया में हम ज्यादातर एटीएम ही यूज करते हैं। बट आपका मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे घर के सामने एक एटीएम है, उसके ग्लास डोर के ऊपर कैश पॉइंट लिखा हुआ। हाँ, ऊपर बोर्ड पे बड़ा बड़ा एटीएम लिखा है, बट ऑन द ग्लास डोर ऑफ दैट एटीएम इट्स रिटन कैश पॉइंट। सो कैश पॉइंट क्या है? सेम थिंग, इट्स एटीएम। Cash point is spoken by a British and ATM is spoken by Americans. Now the next is Britishers, they say the word trousers. I need to buy new trousers, or you have to wear only trousers for your interviews. You cannot wear jeans and all that, you need to wear trousers for your interviews. वहीं पर सेम चीज है, अमेरिकन्स उसे पैंट्स बोलते हैं, पैंट्स नॉट ट्राउजर्स। और इंडिया में हम दोनों यूज करते हैं, पैंट्स भी बोलते हैं और ट्राउजर्स भी बोलते हैं। The next word is underground passage. ब्रिटिशर्स बोलते हैं अंडरग्राउंड पैसेज, और अमेरिकन्स दे यूजुअली कॉल इट एज सबवे। आपको पता है सबवेज जो होते हैं रोड के एक तरफ से, जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक्स होते हैं वहां पर गवर्नमेंट या एमसीडीज सबवेज बनाती हैं, आप नीचे से ही क्रॉस कर जाते हैं। और इंडिया में भी हम उसे ज्यादातर सबवेज बोलते हैं रादर देन योर अंडरग्राउंड पैसेज। द नेक्स्ट इज योर स्वीट्स, मिठाई। स्वीट्स यहाँ पे सिर्फ मिठाई नहीं, यहाँ पे स्वीट्स का मतलब होता है ओके, ऑन माई डॉटर्स बर्थडे शी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन द क्लास। तो उसने मिठाई नहीं बांटी थी, बल्कि उसने कुछ टॉफीज बांटी थी, बट हम इंडिया में उसे स्वीट्स बोलते हैं। बट द सेम थिंग अमेरिकन्स कॉल देम एज कैंडीज। यस, दे कॉल इट एज कैंडीज। फिल्म मूवी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अभी। इसके बाद है हमारा केमिस्ट। ब्रिटिश दे से केमिस्ट, और अमेरिकन्स दे कॉल इट एज ड्रग स्टोर, केमिस्ट शॉप और अ ड्रगिस्ट और अ ड्रग स्टोर। I need to go to market to buy some medicine from the drug store, an American will say. British will say chemist. लेकिन इंडिया में हम ड्रग स्टोर ज्यादा यूज नहीं करते, बट इसके अलावा हम केमिस्ट यूज करते हैं एंड फार्मेसी। दिस इज अनदर वर्ड जो हम एक्चुअली इंडिया में यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम योर ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। द नेक्स्ट वर्ड इज प्लास्टर। ब्रिटिश यहाँ प्लास्टर वो हड्डी टूटने के बाद चढ़ने वाला प्लास्टर नहीं, लेकिन पट्टी जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मल अगर खून निकल जाए आपको पट्टी चढ़ा देते हैं, उनको भी अब जो ब्रिटिश हैं वो उसको कहते हैं प्लास्टर, बट अमेरिकन्स दे कॉल इट एज बैंडेड। और इंडिया में भी हम उसे बैंडेड ही बोलते हैं। प्लास्टर हम लोग उसको बोलते हैं जो हड्डी टूट जाए और वो व्हाइट सीमेंट लगा के जो लगाया जाता है, उसे हम लोग प्लास्टर बोलते हैं। Then the head of the company, managing director. British call them as MD, that is the managing director. Same चीज है, same position, but हम उस Americans जो है वो उन्हें CEO बोलते हैं, Chief Executive Officers. इंडिया में हम दोनों यूज करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, टाटा ग्रुप का हेड है रतन टाटा, राइट? बट अगर आप उनके नाम के साथ देखेंगे, कभी वो हमेशा बोलते हैं द MD ऑफ टाटा ग्रुप। He is called as the MD of Tata Group. वहीं पर अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, सो मुकेश अंबानी इज द CEO ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। ये नहीं बोलते दैट मुकेश अंबानी इज द MD ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। वो अपने नाम के साथ CEO लगाते हैं, ना कि MD। Whereas Mr. रतन टाटा he adds MD with his name. अब इंडिया में ही आप देख रहे हैं दोनों चीजें होती हैं।
Then in India we have a dust. It's dust bin, bin, dust bin. Or English, Americans they call it as garbage can or trash can, right? And in India usually we say dustbins. कि रोड पे डस्टबिन्स हैं, don't throw the things on the road, throw it in the dustbins. और अगर आप यहाँ ट्रैश कैन देखते हैं तो आपने ये वर्ड यूजुअली कंप्यूटर्स में देखा होगा, जो आप जिस चीज को डिलीट कर देते हैं वो ट्रैश कैन में चली जाती है. देन अनदर सेट ऑफ वर्ड्स वी हैव इज, फर्स्ट इज योर गार्डन, जो आपका गार्डन होता है. यूजुअली हम लोग भी उसे गार्डन बोलते हैं. अमेरिकन जो है वो उन्हें यार्ड्स बोलते हैं. यार्ड, नॉट अ गार्डन. इंडिया में हम गार्डन बोलते हैं या पार्क भी बोल देते हैं. इट ऑल डिपेंड्स. देन इज हॉलीडे, समर हॉलीडेज आने वाले हैं, राइट? और योर विंटर हॉलीडेज. एंड अमेरिकन्स दे कॉल इट एज वेकेशंस. इंडिया में हम दोनों यूज करते हैं. पहले हम ज्यादातर हॉलीडेज ही बोलते थे, समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, बट नाउ वी से समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस. तो ये वर्ड अब हम ज्यादा मतलब ये भी यूज करने लगे हैं विद हॉलीडेज. Then we have in this word which British call it as jumper and American call it as sweater. Sweater तो आप जानते हैं सर्दियों में सब लोग पहनते हैं. So same चीज है. Americans उसे स्वेटर बोलते हैं, ब्रिटिश उसे जंपर बोलते हैं, और इंडिया में हम उसे स्वेटर बोलते हैं, नॉट जंपर. जंपर लोगों के लिए कुछ और होता है इंडिया में. Then we have is football. Let's play football. आपने ऐड देखा होगा, आजकल टेलीविजन में बहुत ज्यादा आता है. So British call it as football and we also in India call it as football. But same cheese, same sports, America it is called soccer. Yes. But in British and mostly parts of the world it is called as football, or जिसे हम बोलते हैं FIFA World Cup, right? So that's Federation of International Football Association, FIFA. So it's Federation Football Association, not Soccer Association. Then we have is toilet or loo. Toilet, British जो है वो उसे toilet भी बोलते हैं और उसे loo भी बोलते हैं. And in America they call it as washroom or restrooms. इंडिया में उसे टॉयलेट भी कहा जाता है, वॉशरूम्स भी कहा जाता है, एंड इंडिया में कई लोग उसे बाथरूम भी बोल देते हैं. टॉयलेट आप जानते हैं क्या है, आपने फिल्म भी देखी होगी, बहुत पॉपुलर फिल्म थी टॉयलेट एक प्रेम कथा. वॉशरूम भी बोलते हैं, मे आई गो टू द वॉशरूम, एंड बाथरूम ऑफ कोर्स. आजकल आप कई जगहों पे स्पेशली एट द एयरपोर्ट्स और कई अगर आप होटल्स में जाते हैं बड़े बड़े, वहां पर आपको रेस्ट रूम भी लिखा हुआ दिखता है. इवन इन द मल्टीप्लेक्स अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो वहां पर भी कई बार बाहर टॉयलेट नहीं लिखा होता बल्कि रेस्ट रूम लिखा होता है. सो दिस वर्ड इज ऑल्सो इमर्जिंग दीज डेज. द नेक्स्ट इज मोटरवे. ब्रिटिश उसे मोटरवे बोलते हैं और अमेरिकन सेम चीज को हाईवे बोलते हैं. हाईवे तो आपको पता है, इंडिया में बहुत सारे हाईवेज हैं, सो हम भी उसे हाईवे ही बोलते हैं. देन वी हैव इज लेटर बॉक्स. लेटर बॉक्स तो आपको पता है, जिसमें आपकी चिट्ठियां आती हैं या आप चिट्ठी डालें तो आप लेटर बॉक्स में डालते हैं. अमेरिकन कॉल इट एज अ मेल बॉक्स. मेल same thing, letter, mail box, but usually in India we don't call it as a mail box, but हम उसे letter box बोलते हैं. So letter box से related person है postman, जो आपकी चिट्ठियां डिलीवर करता है. इंडिया में भी हम उसको postman ही बोलते हैं, बट अमेरिकन्स जो हैं उसे mailman. देखिए जब यहाँ मेल है, सो यहाँ से यहाँ ये आ गया, it's mailman. The next word to understand is flat. Flat, इंडिया में ज्यादातर हम उसे फ्लैट या अपार्टमेंट बोलते हैं. अमेरिकन्स कॉल इट एज अपार्टमेंट. तो फ्लैट पहले ज्यादातर हम फ्लैट्स बोलते थे, आजकल कुछ लोग अपार्टमेंट भी बोलने लग गए हैं. रिसेप्शनिस्ट.
रिसेप्शनिस्ट, आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर एक बंदा या एक लड़की मिलती है जो रिसेप्शन पे बैठा होता है, वो होता है हमारा रिसेप्शनिस्ट. अमेरिकन्स दे कॉल हिम और हर एज डेस्क क्लर्क. दे कॉल देम एज डेस्क क्लर्क, और इंडिया में हम उसे रिसेप्शनिस्ट ही बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर रिसेप्शनिस्ट कहाँ होता है? ऑफिस में, राइट? सो ब्रिटिश कॉल देम एज ऑफिस एंड अमेरिकन्स दे कॉल इट एज वर्क प्लेस, और इंडिया में हम ज्यादातर ऑफिस. देन वी हैव ब्रिटिश कॉल इट एज फिजी ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक. फिजी, आपने एड भी देखा होगा, फिजी ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक. अमेरिकन्स दे कॉल इट एज सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक. इंडिया में ज्यादातर हम उसे सॉफ्ट ड्रिंक ही बोलते हैं. देन वी हैव इज पेवमेंट. पेवमेंट पता है, रोड के किनारे जो चलते हैं, पेवमेंट बोलते हैं ब्रिटिश, एंड अमेरिकन्स कॉल इट एज साइड वॉक. दे कॉल इट एज साइड वॉक. वहीं पे जो इंडियंस हैं दे कॉल इट एज पेवमेंट. देन वी हैव इज कबर्ड, कबर्ड. British they call it as cupboard, Americans they call it as cabinet, और Indians उस सेम चीज को अलमीरा बोलते हैं. एक्चुअली अलमीरा जो है ये एक हिंदी वर्ड अलमारी का आप कह सकते हैं अभ्रष्ट वर्ड है. मीन्स अलमारी से वो अलमीरा बन गया. ज्यादातर लोग इंडिया में अलमीरा बोलते हैं. हाँ, कबर्ड भी बोलते हैं, अलॉट से कबर्ड नहीं बोलते, कबर्ड भी बोला जाता है, बट मोर ऑफन दे स्पीक इज अलमीरा. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रबर. रबर, ये वो प्लास्टिक वाला नहीं, बट वो किताबें मिटाने वाला रबर है. अमेरिकन्स कॉल इट एज इरेजर, एंड इन इंडिया वी कॉल इट एज रबर एंड इरेजर. पहले आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन द स्कूल, हम लोग ज्यादातर रबर बोलते थे, रबर देना, मैं रबर नहीं लाया. बट नाउडेज वी कॉल इट एज इरेजर. देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज लास. लास, ब्रिटिश बोलते हैं लास, अमेरिकन्स बोलते हैं गर्ल, लड़की. लास मीन्स लड़की एंड लैड मीन्स लड़का. इंडिया में हम उसे ऑब्वियसली गर्ल एंड बॉय बोलते हैं, ना कि लास एंड lad. So British call a girl as lass and we call girl as girl only, like Americans too. वहीं पे लड़के को lad बोलते हैं और Americans उसे boy बोलते हैं और हम भी उसे boy ही बोलते हैं. Next we have is car park. Car park. आप जाते हैं तो कार को पार्क करते हैं, that's called car park. Americans they call it as parking lot. Parking lot. But in India we use both, but more people uses car park. Then the next one we have is timetable. You have to work. I mean, if you are preparing for your exam or if you are studying, you have to study according to the timetable. British उसे timetable कहते हैं and Americans उसे schedule कहते हैं. Schedule. इंडिया में पहले हम टाइम टेबल ज्यादा बोलते थे, अब कुछ लोग जो हैं वो स्केड्यूल भी बोलने लग गए हैं. देन द नेक्स्ट वर्ड इज बार. बार, जहां लोग पीने जाते हैं, एंड इन अमेरिका इट इज कॉल्ड पब. इंडिया में ज्यादातर वो बार कहलाए जाते हैं, बट स्टिल मेनी पीपल दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग इट एज पब ऑल्सो. Then the next one we have is solicitor. Solicitor होता है वकील. ब्रिटिश उसे वकील को solicitor बोलते हैं, वहीं पे जो अमेरिकन्स हैं वो उसे लॉयर बोलते हैं, और इंडिया में हम उसे लॉयर भी बोलते हैं और एडवोकेट भी बोलते हैं. हम सॉलिसिटर ज्यादा यूज नहीं करते, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं यूज होता, सॉलिसिटर जनरल होता है, बट ज्यादातर लोग उसे लॉयर या एडवोकेट्स बोलते हैं इंडिया में. कर्टन, ये तो आप समझ गए कर्टन क्या होते हैं. हर किसी के घर में यूजुअली दरवाजे पे, खिड़की पे कर्टन्स होते हैं. अमेरिकन्स दे कॉल इट एज ड्रेपर्स. ड्रेपर्स, बल्कि और इंडिया में हम उसे कर्टन्स ही बोलते हैं.
नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स, विंड स्क्रीन। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता है जो गाड़ी के आगे का शीशा होता है या पीछे का शीशा होता है जो आपकी हवा को रोकता है, उसे हम विंड स्क्रीन बोलते हैं। सेम चीज अमेरिकन उसे विंड शील्ड बोलते हैं, विंड शील्ड, यस। और हम यूजुअली यहाँ पर विंड स्क्रीन ही बोलते हैं। देन वी हैव इज नंबर प्लेट। अब गाड़ी के ऊपर जो नंबर लगा होता है कि से फॉर एग्जाम्पल मेरा गाड़ी नंबर है DL8CD6519, सो दैट्स द नंबर प्लेट। नंबर प्लेट पे नंबर लिखा जाता है। सेम चीज अमेरिकन जो है उसे लाइसेंस प्लेट बोलते हैं, बट इंडिया में यूजुअली हम उसे नंबर प्लेट ही बोलते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज बोनेट। बोनेट होता है जो या हुड ऑफ अ कार, राइट। हुड कई लोग वो उनके वो टी शर्ट्स में हुड्स होते हैं जिनसे वो ढक लेते हैं अपने सर को। यहाँ हम उस हुड की बात नहीं कर रहे जो गाड़ी लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी सॉरी बट आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग। जैसे ये होता है हमारा गाड़ी, तो ये जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड बोनेट बाय ब्रिटिश एंड अमेरिकन कॉल द सेम थिंग एज हुड। इंडिया में हम उसे बोनेट बोलते हैं। The next is jam. Jam बच्चे जैम लगाकर खाते हैं, so the same thing. Americans call it as jelly, but India में usually हम से jam बोलते हैं. Then the next we have is tin. Tin and Americans call it as can. इंडिया में उसे टिन और कैन दोनों बोलते हैं। पहले हम ज्यादा टिन यूज करते थे बट अब हमारे कैन भी हम यूज करते हैं। लाइक आप सॉफ्ट ड्रिंक अगर पीते हैं यू कैन गेट इट इन अ बॉटल, राइट, ड्रॉप, और यू कैन गेट इट इन अ कैन्ड वन। सो अभी हमने देखा बहुत सारे वर्ड्स देखे जो वोकैबुलरी डिफरेंस आपने देखा इसके लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो हम इंडिया में भी यूज करते हैं जो ना तो ब्रिटिश के हैं ना अमेरिका के हैं। लाइक अलमीरा हमने देखा, और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको, ये तो वो वर्ड्स थे मेनली जो मैंने आपको डिफरेंस बताया बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश, लेकिन इसके अलावा कुछ वर्ड्स हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द वर्ड लाइक फॉरेस्ट और woods, Americans also call it as like forests or woods basically. ज्यादातर वो woods बोलते हैं, बट इंडिया में या तो हम forest बोलते हैं और इसके अलावा हम जंगल भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो जंगल है ये यहाँ दोनों में नहीं है। एक्चुअली जंगल जो है ये एक हिंदी का वर्ड है, हिंदी का वर्ड जो कि हम इंग्लिश में जैसे अलमीरा, अलमारी से अलमीरा बना दिया हमने, उसी तरह हम जंगल को जंगल यूज कर रहे हैं। और लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, लाइक इफ आई से ओके प्रिजन, और इफ आई से behind the bars. Same here, we say prison or behind the bars. यानी कि prison मतलब कि जेल। तो अगर किसी को सजा होती है तो कहते हैं ना उसको जेल भेज दिया, he was sent to prison। और इंडिया में एक और वर्ड हम यूज करते हैं which is jail, जेल। सो ये एक ऐसा वर्ड है जो एक एक्चुअली हिंदी का वर्ड है जिसे हम एग्जैक्टली इंग्लिश में यूज करते हैं। सो दिस इज इन इंडियन इंग्लिश। जेल, अब आप जेल भी आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा, मतलब जंगल भी आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर अभी तक जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं वो भी बताए हैं जो कि मेनली ब्रिटिश और अमेरिकन में भी अलग अलग होते हैं। बट इसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि आजकल हमारी एक नई इंग्लिश डेवलप हो रही है जिसे हम इंडियन इंग्लिश कहते हैं, जिसमें ये सारे वर्ड्स होते हैं और ये सारे वर्ड्स लोगों को मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट सेक्शन विच इज योर प्रोनाउंसिएशंस। सो
अब हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन की कि किस तरह से उन वर्ड्स को, देखिए हमने देखा स्पेलिंग डिफरेंस, वोकैबुलरी डिफरेंस, ग्रामर डिफरेंस, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बोलने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होता है, mainly in British and American English, and of course in Indian English also. Then in American English, T turns to soft d, 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 d. Soft मतलब बहुत हल्का सा बोला जाता है. ट जो है हमारा ट साउंड वो ड बन जाता है in case of American English when it comes between two vowels or between a vowel or r. अगर वो दो वॉवल्स के बीच में आ रहा है या एक वॉवल और किसी र के बीच में आ रहा है, टी माइंडेड, ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो ट नहीं बोला जाता अमेरिकन इंग्लिश में, बल्कि ड, सॉफ्ट ड बोला जाता है. जैसे द फर्स्ट वर्ड इज दे नॉट से सैटरडे, सैटर. अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ट जो है ये ए और यू के बीच में आ रहा है, जो हमारे वॉवल्स हैं. सैटरडे, सैटरडे, दे नॉट से सैटरडे, 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 राइट. नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव, ड. ये जो ट है हमारा ये ड बन जाता है, नेगेटिव, राइट. My blood group is AB positive. What is your blood group? So let's say if you say my blood group is O negative. Negative nahi, negative, right? Water, water. They don't say water, they say water, 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 water. Butter. They don't say butter, they say butter, butter, d. ये आपका ड बन रहा है. Computer. Computer. Which computer do you have? Computer nahi, computer. D. Then it's party. It's not party. हम लोग party बोलते हैं, but because we are following usually the British system. But in case of Americans, it's party. 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 Right? Then what about? What about? देखिए टीन 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 टी एंड में आ रहा है. What about? What about? और यहाँ पे भी टी एंड में आ रहा है, राइट. अब यहाँ पर जो टी है, देखिए अब हमने पहले सिर्फ what देखा था लास्ट स्लाइड में. यहाँ पे टी जो है ये बीच में आ रहा है क्योंकि ये एक वर्ड्स है, ये एक वर्ड्स है. सो इट्स what about? What about? What about going for a movie? Would you like to go for a movie? What about this movie? What about? What नहीं, what about? The. अब अगर हम इंडिया में कहते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन, हम बटर बोलते हैं, हम सैटरडे बोलते हैं, हम नेगेटिव बोलते हैं और वाटर बोलते हैं. और अगर आप अलग अलग जगहों पे जाएं तो आप बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं. लाइक I know some South Indian, I have some South Indian friends. वो लोग तो नहीं मैं कहूँगी because they have been brought up in Delhi and other places. उनके जो parents या grandparents हैं, water. Can you get me a glass of water? They don't say water, they say water. So इंडिया में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं बिकॉज वी हैव डिफरेंट डायलैक्ट्स. बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो लोग बोलते हैं, सो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है इन केस ऑफ प्रोनाउंसिएशंस. डिफरेंस ऑल्सो कम्स इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. जैसे ये वर्ड है हमारा, ब्रिटिश जो है वो इसे Z बोलता है, अमेरिकन जो है वो इसे Z, XY, Z, वो इसे Z बोलते हैं. Now, this word, N-E-W, British will say new, new, I bought a new car. American will say new, new. Next we have is A-D-U-L-T. A British will say adult. American will say adult, adult. In India, like usually a person who is over 18 years, he is considered as an adult citizen, adult. American will say adult, adult.
Garage. British will say garage. Garage. American will say garage. Same spelling, only difference in pronunciation. British will say garage. American will say garage. Right? Then is, can you give me your address? Address. So British will say address. American will say address. Address. Not address, but address. R-O-U-T-E. British will say route. Can you tell me which bus route will go to my house? American call it as route. Route. This route is not good. Then we have is advertisement. British call it as advertisement. Americans call it as advertisement. Advertisement. ये सारे वर्ड्स अभी हम दोबारा से देखेंगे. Then we have is apricot. Right? Apricot. British call it as apricots. Americans call it as apricot. 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 Then is leisure. British call this word as leisures. Americans call it as leisure. Leisure. Then very common word, कई लोगों को difference लगता है. Either. British call it as either. Americans call it as either. Either or, neither nor. आजकल कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि either or बोलें या neither nor बोलें. So क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि ब्रिटिश जो है इसे either बोलते हैं, अमेरिकन्स इसको either बोलते हैं. The next is neither spoken by British, neither spoken by Americans. देखिए, ये है हमारा वर्ड. ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं हॉट. ओ की आवाज दे रहे हैं. और लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं हॉट. आ की आवाज होती है, ना कि ओ की. हॉट. राइट? मॉम इज इन ब्रिटिश इंग्लिश. अमेरिकन से मॉम. 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 Top is what British say, top, on top of the world. American will say top. I am on top of the world, top. He is very honest, honest. But American will say he is very honest, honest. British will say, would you like to have a cup of coffee? Coffee. American will say, would you like to have a cup of coffee? Coffee, coffee, not coffee, but coffee, right? So, American English में कई बार हम जो O word है वो आपको O का नहीं बल्कि आ का साउंड देता है, जैसा आपने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स में देखा.